Hello everyone, this is Tarun Kumar Das working in Kendriya Vidyalaya Koraput. Welcomes all of you for today's mathematics class. And today's topic is prime and composite numbers. And this is a very important topic in mathematics and it is useful in higher classes as well as in the lower classes. So I would like to request everyone, please watch this video up to the end. I hope I have cleared your doubts, almost all cleared, as well as you may have some of the tasks to be completed at the end. So my dear friends, please watch this video. Before going to the lesson, let us find out what are the objectives we are going to achieve after this end of this lesson. And the first one, understand the prime and composite numbers. इसका मतलब हम इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी बात, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। जो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि रोचक फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। Let's learn prime and composite numbers. This is Rahul and this is Rahul's teacher. ये राहुल है और ये है राहुल के टीचर। तो टीचर कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं राहुल से। क्या है उनका क्वेश्चन? राहुल, arrange the numbers from 1 to 10 on the basis of factors. राहुल को ये क्वेश्चन पूछा गया कि राहुल, आपको 1 से 10 तक जो नंबर है उन्हीं को आपको अरेंज करना है, पर एक शर्त है, वो भी फैक्टर के हिसाब से। तो राहुल अभी क्या हुआ, सोच में पड़ गए। राहुल सोच में पड़ जाने के बाद राहुल ने सोचा कि क्या करना है। देखते हैं राहुल क्या करते हैं। राहुल tried to find out the factors of almost all the numbers from 1 to 10. So first Rahul considered about 1. What numbers can be multiplied together to give the number 1? हम 1 पाने के लिए हम ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 1 मिलेगा? तो इसका सॉल्यूशन है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा और नंबर है। दैट मीन्स नो अदर वे टू मल्टीप्लाई टू गिव 1। सो वी कैन से 1 is the only factor of the number 1. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1. Then he considered the number 2. उसके बाद राहुल कंसिडर किया 2. So Rahul tried to find out what numbers can be multiplied together to give the number 2. 1 multiplied by 2 is equal to 2. 2 multiplied by 1 is equal to 2. No other way to multiply to give 2. इसके आगे और कोई वे नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करके 2 मिल सकता है। तो the factors of 2 are 1 and 2. Then he considered the number 3 and he tried to find out what are the numbers can be multiplied together to give the number 3. 1 multiplied by 3 is equal to 3. 3 multiplied by 1 is equal to 3. No other way to multiply to give 3. The factors of 3 are 1 and 3. Then he considered the number 4. What numbers can be multiplied together to give the number 4? 1 multiplied by 4 is equal to 4. 2 multiplied by 2 is equal to 4. 4 multiplied by 1 is equal to 4. No other way to multiply to give 4. So the factors of 4 are 1, 2,
and 4. It means 4 has only 3 factors. 1 has 1 factor, 2 has 2 factors, 3 has 2 factors, but here 4, we got here 3 factors. Then he considered the number 5. What numbers can be multiplied together to give the number 5? 5 पाने के लिए हमें ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करनी है? 1 multiplied by 5 is equal to 5. 5 multiplied by 1 is equal to 5. There is no other way to multiply to give 5. So the factors of 5 are 1 and 5. इसके आगे हमें और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके मल्टीप्लाई करके हमें 5 मिलेगा, इसीलिए हम कहेंगे 5 के फैक्टर्स है 1 and 5. Now we got only 2 factors of 5. Then he considered the number 6. What numbers can be multiplied together to give the number 6? 6 पाने के लिए हमें ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है? देखते हैं. 1 multiplied by 6 is equal to 6. 2 multiplied by 3 is equal to 6. 3 multiplied by 2 is equal to 6. 6 multiplied by 1 is equal to 6. There is no other way, okay, to give 6. Now the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 6 has here 4 factors. Then he considered the number 7. What numbers can be multiplied together to give the number 7? 1 multiplied by 7 is equal to 7. 7 multiplied by 1 is equal to 7. No other way to multiply to give 7. The factors of 7 are 1 and 7. Here we got only 2 factors. Then he considered the number 8. What numbers can be multiplied together to give the number 8? 1 multiplied by 8 is equal to 8. 2 multiplied by 4 is equal to 8. 4 multiplied by 2 is equal to 8. And 8 multiplied by 1 is equal to 8. So is then no other way to multiply to give 8. We can say the factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. It has only 4 factors. Next, then he considered the number 9. What numbers can be multiplied together to give the number 9? 1 multiplied by 9 is equal to 9. 3 multiplied by 3 is equal to 9. 9 multiplied by 1 is equal to 9. No other way to multiply to give 9. The factors of 9 are 1, 3 and 9. Here we got only 3 factors of 9. Then he considered the number 10. What numbers can be multiplied together to give the number 10? 1 multiplied by 10 is equal to 10. 2 multiplied by 5 is equal to 10. 5 multiplied by 2 is equal to 10. 10 multiplied by 1 is equal to 10. There is no other way to multiply to give 10. So we got here the factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. यहाँ पे हमें दोस्तों 4 फैक्टर्स मिले. एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 10. तो अभी पता चला है दोस्तों कि राहुल ने अभी 1 से 10 तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई फैक्टर्स निकाल दिए. अब फैक्टर्स निकालने के बाद अब राहुल को क्या करना है, इन्हीं फैक्टर के हिसाब से उसको अरेंज करना है. तो चलते हैं राहुल कैसे अरेंज करता है देखते हैं. Rahul arranged the numbers 2, right hand side 4, then 3, then 6, then 5, then 8, then 7,
then 9, then 10. That means Rahul made here 2 columns. यहां पे राहुल 2 columns करके एक में 2, 3, 5, 7 लिखे, दूसरे कॉलम में उन्होंने 4, 6, 8, 9, 10 लिख दिए। अब राहुल के मन में एक सवाल आता है, क्या वो नंबर 1 कहां लिखेंगे? Where should I write 1? 1 को लिखने के लिए राहुल ने सोचा, ना, 1 को हम अलग जगह पे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में उनको तो टीचर को बताना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। This is Rahul's teacher and she asked, why did you make 3 groups? राहुल, आपने 3 ग्रुप क्यों बनाया? राहुल का जवाब था, let me tell my teacher। तो राहुल ने क्या बताया? 2, 3, 5, 7 have only 2 factors each। राहुल ने कहा कि 2 का 2 फैक्टर्स है, 3 नंबर्स का 3 फैक्टर्स है, सॉरी 2 फैक्टर्स है, 5 का भी 2 फैक्टर्स है और 7 का भी 2 फैक्टर्स है। अब 4, 6, 8, 9, 10 have more than 2 factors each। 4, 6, 8, 9 और 10 ये सभी के सभी नंबर्स के जितने सारे नंबर देखें हम अभी यहाँ पे लिखे हैं, इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। पर 1 has only 1 factor। 1 का तो फैक्टर एक ही है। अब इसीलिए इसी के अकॉर्डिंगली राहुल ने यहाँ पे 3 ग्रुप्स बना दिए। 2, 3, 5, 7 are called as prime numbers। 4, 6, 8, 9, 10 are called as composite numbers। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो 2, 3, 5, 7 इसी तरह के नंबर्स हम उसको प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 को, 3 को, 5 को, 7 को क्यों कहा गया प्राइम नंबर्स? क्योंकि 2 के पास 2 फैक्टर है, 3 के पास 2 फैक्टर है, 5 के पास 2 फैक्टर्स, 7 के पास भी 2 ही फैक्टर हैं। पर 4, 6, 8, 9, 10 ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया कंपोजिट नंबर्स और 2, 3, 5, 7 को कहा गया प्राइम नंबर्स। पर 1 के पास कितने फैक्टर है? 1 is neither prime nor a composite number। अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि 1 के पास ना 2 फैक्टर्स है और ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है, पर 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे। तो फिर 1 क्या है? 1 is a स्पेशल नंबर। इसको एक विशेष संख्या या फिर स्पेशल नंबर कहा जाता है। The numbers having only 2 factors are called as prime numbers। ये जो नंबर जिनके पास सिर्फ एंड सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, हम उनको प्राइम नंबर्स कहेंगे। The numbers having more than 2 factors are called as composite numbers। The numbers जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, हम उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। दोस्तों, यह है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का डिफिनीशन, संज्ञा, इसको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 11, 19, 31 इसी तरह के नंबर्स are called as prime numbers। But 4, 8, 9, 25, 32 etc. are called as composite numbers। ये जो नंबर है 4, 8, 9, 25, 32 इसी तरह के नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। What is the HCF of the prime numbers? यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उन प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है? Each prime number has only 2 factors, 1 and the number itself। हम लोग जानते हैं कि हर एक प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 होता है और दूसरा फैक्टर वही नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के पास 2 फैक्टर्स है,
1 एंड 2। 5 के पास दो फैक्टर्स है 1 एंड 5। 13 के पास दो फैक्टर्स है 1 एंड 13। इसी तरह जो भी प्राइम नंबर लेंगे सभी के पास सिर्फ 1 और वही नंबर उसका फैक्टर्स है। All the prime numbers have 1 as the only common factor। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे प्राइम नंबर्स है सभी के पास कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, और वो भी एक ही है कॉमन फैक्टर, इससे ज्यादा कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर एक ही कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, ऑब्वियसली 1 बनेगा। सो 1 इज द HCF ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल the HCF of 2, 3, 11 and 17 each 1। What is the LCM of the prime numbers? Prime numbers का LCM क्या होता है? The prime numbers do not have any common multiples। क्यों दो बताओ दोस्तों, 2 के मल्टीपल्स 2 से डिविजिबल वाला नंबर्स होते हैं, 3 के मल्टीपल्स जो होते हैं वही नंबर 3 से ही डिवाइड हो पाएंगे, इसी तरह वो 2 से नहीं हो पाएंगे। इसी तरह क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे जितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं ये सभी का कोई कॉमन मल्टीपल हमें नहीं मिलने वाला है। अगर जिसका कॉमन मल्टीपल नहीं मिलने वाला है तो क्या कर सकते हैं, सो द एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, वही सभी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उनका नंबर मिलेगा जो वो नंबर है उनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल the LCM of 2, 3, 11 and 17 each 2 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 17, which is equal to 1122. That means 1122. So this is the LCM of 2, 3, 11 and 17, but the HCF is only 1. Is an even number higher than 2 a composite number? सवाल उठता है यहाँ पर, क्या एक इवन नंबर जो कि 2 से बड़ा है क्या वो कंपोजिट नंबर है? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि 2 जानते हैं आप लोग 2 एक इवन नंबर है, पर 2 कंपोजिट नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जो कि जितने सारे इवन नंबर है क्या वो कंपोजिट नंबर होंगे? All the even numbers are divided by 2। ये सभी को पता है जितने सारे इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। So the even numbers have the factors 1, 2 and the number itself in minimum। इसका यह मतलब हुआ कि इवन नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो उनके पास 1 और 2 तो ऑब्वियसली फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि 1 से वो नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, उसी के साथ साथ वो नंबर एटलीस्ट अपने से तो डिवाइड हो ही सकता है, इसके आगे और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं द इवन नंबर्स लाइक 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे पता चल गया दोस्तों कि जो भी नंबर 2 से बड़ा होता है उसके पास मिनिमम 3 डिवाइजर्स या फिर फैक्टर्स बन ही जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे जो 2 से ज्यादा जो इवन नंबर होते हैं वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर बनेंगे। All the even numbers higher than 2 are composite numbers. Which number is the only even and prime number? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है और वो भी एक ही है? Yes, obviously the number 2 is the only even and prime number. कैसे? Solution कहता है 2 is divided by 2, so it is an even number। 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए उसको इवन नंबर कहेंगे। 2 has only 2 factors, so it is a prime number। 2 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है 1 and 2, इसका मतलब ये हुआ 2 प्राइम नंबर है। तो 2, उसके पास और भी एक ऑप्शन है, 2 से बड़ा जितने सारे इवन नंबर है सभी के सभी कंपोजिट नंबर्स है। तो इससे पता चलता है 2 is the only even and prime number। Why is 1 neither prime nor a composite number? 1 को हम ना प्राइम कहेंगे ना कंपोजिट कहेंगे, क्योंकि a prime number has only 2 factors
ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर प्राइम नंबर बनना है तो उसके पास 2 फैक्टर होना जरूरी है। अगर कंपोजिट नंबर बनना है तो उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना जरूरी है। लेकिन 1 के पास कितने हैं? 1 के पास बट 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। इसीलिए हम कहेंगे 1 इज neither प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 एक स्पेशल नंबर है। Now, my dear friends, some of the facts about this prime and composite numbers, and the topic is, did you know a prime number has only 2 factors, 1 and the number itself. A composite number has more than 2 factors. Prime numbers are infinite in nature. मतलब प्राइम नंबर्स हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। कंपोजिट नंबर्स आर आल्सो इनफाइनाइट इन नेचर। दोस्तों, जब नंबर्स ही इनफाइनाइट है तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे फाइनाइट हो सकते हैं? ये भी इनफाइनाइट होते हैं। 1 is neither prime nor a composite number. 1 is a special number. 2 is the smallest prime number. जितने सारे प्राइम नंबर है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. 2 is the only even prime number. 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। 4 is the smallest composite number. आप अगर देखना चाहेंगे तो कंपोजिट नंबर शुरू होता है 4 से, इसलिए 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। 9 is the smallest odd and composite number. अगर ऑड और कंपोजिट नंबर चेक करना चाहेंगे तो हमें मिलेगा 9। क्यों? 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, और 9 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 के पास फैक्टर्स है 1, 3 एंड 9, 3 फैक्टर्स है, इसीलिए 9 को कंपोजिट नंबर भी कहा जाएगा और 9 ऑड नंबर भी है। तो हम कहेंगे 9 is the smallest odd and composite number. All counting numbers greater than 1 are either prime or composite number. जितने सारे काउंटिंग नंबर्स है वो 1 से बड़े होते हैं, वो सभी के सभी एक तो प्राइम नंबर्स होंगे, नहीं तो फिर कंपोजिट नंबर्स होंगे। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर नहीं है। ठीक उसी तरह ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। The HCF of the prime numbers is always 1. The LCM of the prime numbers is their product. यह हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। Every even number higher than 2 is always a composite number. ये थे कुछ facts about prime and composite numbers. Now, my dear friends, do me a favor. Some questions for you. 1. List out the prime numbers from 1 to 50. आपको क्या करना है? 1 से लेकर 50 तक जितने सारे प्राइम नंबर से सभी को कैलकुलेशन करना है और शो भी करना है कि ये प्राइम है। तो उसका फैक्टर निकाल के आपको पता लगाना है कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो आपको लिस्ट आउट करना है सिर्फ प्राइम नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 एंड 60? 50 से लेकर 60 के बीच में कितने सारे कंपोजिट नंबर्स है? आपको नंबर भी बताना है, उसी के साथ साथ कैलकुलेट भी करना है। Each 57 है प्राइम और कंपोजिट नंबर। अभी आपको पता लगाना है, फाइंड योर आंसर। आपको पता लगाना है क्या 57 प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 57 का आप फैक्टर्स निकालेंगे। अगर 57 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा आया तो कंपोजिट, अगर 57 के फैक्टर्स 2 से कम है, दो ही है तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। Friends, if you like this video, please subscribe my YouTube channel. You can like and you can comment your views and you can share with your friends, and you can follow me at https://tarunkumardas.blogspot.com. You can download almost all the quizzes, and as well as you can have some more worksheets regarding different aspects of mathematics and English and other subjects also. So I would like to thank all of you for being with me. Thank you, friends. I will be back with a new video for you. Till then, bye bye.